Assalamu alaikum, my dear audience, and welcome to my channel McKinney Literary Vibes. Students, the topic we're gonna discuss is the character sketch of Lady Macbeth. She wasn't the queen, but she made the king. Yeah, it's true. She made the king Macbeth. Lady Macbeth, the woman who dared who dared to defy morality, summon darkness, and push her husband into murder, all for power. But you know what happens when turns into guilt and guilt into madness? Stay with me. This story doesn't end the way you think. So, Lady Macbeth is not purely evil. She is over ambitious but emotionally fragile. What if I told you that Lady Macbeth is not just villain but actually one of the most tragic and psychologically complex characters in literature? A woman who challenges nature, controls her husband, and dares to call upon dark forces only to be destroyed. Only to be destroyed by her own guilt. Today we will uncover the real face of Lady Macbeth that most students ignore. And this is the most important questions related to this drama. Um, um, if examiner ask about the psychologically complex aspects of the drama, you can give the details of Lady Macbeth. So she was not the villain. She was just a lady, a typical lady. Like आपको पता है हर आम औरत की तरह who desire a good life for her and for her husband. So some critics says that she was a villain. She was actually a villain, and some says she was psychologically ambiguous character. So we will evaluate that what was she in actual. So let's start this assignment. So Lady Macbeth, uh, who is also remembered as the fourth witch of the play by some critics, occupies one of the most favorite places among the Shakespearean tragic heroine. The eminence which Macbeth enjoys among the tragic heroes of Shakespeare, Lady Macbeth enjoys among the heroines. कहते हैं कि इसको प्ले की जो चौथी विच है हम वो भी कह सकते हैं लाइक अदर थ्री विचेस और कहते हैं कि जैसे मैकबेथ जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंट जगह है उसी तरह एज अ ट्रैजिक हीरोइन जो है ये एक इसकी एक इम्पॉर्टेंट जगह है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में. Lady Macbeth enjoys among the heroines the place Macbeth enjoy among the tragic hero. She far excels other heroines in the Shakespearean world by her grandeur, strength, and awe. Even कहते हैं कि she is far excel from the other heroines of Shakespeare. अपनी ग्रैंडर से अपनी स्ट्रेंथ से और अपनी ओफ से शी इज़ फिटिंग काउंटर पार्ट टू हर हस्बैंड एंड पोजेसेस जस्ट दोज वेरी क्वालिटी विच हर हस्बैंड लाइक्स. कहते हैं कि उसमें वो क्वालिटीज़ भी थी जो कि उसके हस्बैंड में नहीं थी. शी इज़ देयर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री टू हर हस्बैंड एंड हेल्प्स इन मेकिंग द ट्रेजेडी फुल एंड कॉम्प्लीट. और वही है जो ट्रेजेडी को जो है कंप्लीट करती है. शी इज़ द गाइडिंग फोर्स एंड डिसाइडिंग फैक्टर एट लीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले. विदाउट हर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ द प्ले मैकबेथ. कहते हैं कि वही जो थी एक गाइडिंग फोर्स थी इस ट्रेजेडी के पीछे. अगर वो नहीं होती तो शायद ये ट्रेजेडी भी उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती. तो लेट्स स्टार्ट about some specific traits the Lady Macbeth character have. The first trait of Lady Macbeth is ambitious. So how she was ambitious?
if we say she was a typical lady. Like in real world, we can say that every lady is ambitious to be to lead a, successful life for her and for husband. हर लेडी इस वर्ल्ड में चाहती है कि वो कामयाब हो, उसका शौहर कामयाब हो और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करें। अगर हम एक टिपिकल आम लड़की की बात करें तो यही जो हमारी लेडी मैकबेथ थी वो भी एक टिपिकल औरत की तरह ही सोचती थी और उनकी इसी सोच ने उनको बहुत ज़्यादा जो है उनसे गलत काम करवाए और इवन बाय हार्ट शी वाज नॉट दैट मच बैड कैरेक्टर. So William Shakespeare, let's start this paragraph. Ambitious. William Shakespeare, the greatest dramatist of all English literature, sketches the character of Lady Macbeth as an ambitious woman. She is as ambitious as her husband. The only difference between her ambitions and that of her husband is that she is not ambitious for herself but for the sake of her husband. Like I already told you कि वो अपने शौहर की तरह एम्बिशियस थी, लेकिन उनके और उनके शौहर के एम्बिशियस में जस्ट ये डिफरेंस था कि वो अपने लिए एम्बिशियस नहीं थी, वो अपने हस्बैंड के लिए एम्बिशियस थी. एंड वी कैन से शी लव्ड हर हस्बैंड अ लॉट. So she wants him to wear the crown of Scotland. One of the critics named Mrs. Jameson says. So एक क्रिटिक्स थी मिसेस जेमसन, उन्होंने इस पे अपना तज्जिया दिया. It is particularly observable that in the Lady Macbeth concentrated, strong, nerved ambition, the ruling passion of her mind, there is yet a touch of women. She is ambitious less for herself than for her husband. कहते हैं कि उनका जो एम्बिशन था, ये जो मिसेस जेमसन उन्होंने भी यही तज्जिया दिया कि उनका वो एक स्ट्रॉन्ग नर्व थी उनमें एम्बिशियस होने की, एक रूलिंग पैशन था उनके माइंड में. लेकिन इसके बावजूद वो क्या था, उनमें एक टच ऑफ वेमेन था. लाइक एवरी लॉयल वेमेन desire for her husband a successful life, she was the same typical woman of real world. And then she says she is ambitious less for herself than for husband. वो अपने लिए इतनी ambitious नहीं थी, वो अपने husband के लिए ज़्यादा ambitious थी. In order to enable her husband to achieve ambition, she actually goes through a process of unsexing herself. कहते हैं कि अपने जो अपने हस्बैंड को सक्सेसफुल देखने के लिए वो क्या करती हैं, वो इस प्रोसेस से गुजरती हैं. कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ अनसेक्सिंग हरसेल्फ. नाउ व्हाट इज दिस टर्म अनसेक्सिंग हियर? When she evokes some witches and desire for unsexing her, means she wants that all the femininity in her character must be removed so that she can accomplish the task of the murder. In simple word, she wishes to be like a man who is not as gentle and kind as a woman is. वो कहती हैं कि वो मतलब वो एक मैनली ट्रेट्स चाहती हैं अपने आप में, वो एक वुमेन की तरह सॉफ्ट हार्ट और जेंटल होना नहीं चाहती हैं. इसलिए वो कहती हैं, जब वो इनका एक फेमस कोट आप आगे पढ़ेंगे कि वो ख़ुद में कुछ मैनली ट्रेट्स चाहती हैं ताकि उनका दिल नरम नहीं पड़े इन द टाइम ऑफ मर्डर. इन द फर्स्ट इंस्टेंस she plans with her husband the murder of Duncan. In fact, she takes the initiative in it. Thus, Lady Macbeth is an ambitious woman. So, let's move to the next trait, strength of will. Lady Macbeth excels even her husband in her strength of will. अब यहाँ पे कहते हैं कि इवन वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा एम्बिशियस थी और उनमें जो स्ट्रेंथ ऑफ विल थी वो भी अपने हस्बैंड से ज़्यादा थी. डिटर्मिनेशंस एंड रिसोर्सफुलनेस, उनमें डिटर्मिनेशन ज़्यादा थी, रिसोर्सफुलनेस ज़्यादा थी. वंस द डिसीजन टू मर्डर किंग डनकन इज टेकन, शी नोज नो वेवरिंग और रिट्रीटिंग बैक.
कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने एक डिसीजन ले लिया किंग डंकन को कत्ल करने का, तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटी, एंड दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ विल. नो सेंस ऑफ मोरालिटी, gratitude or compassion can deter her from striving to achieve her goal. कहते हैं कि कोई मोरालिटी, कोई ग्रैटिट्यूड, कोई कंपैशन और किसी भी किस्म के इमोशंस जो है वो उन्हें उनके मकसद को पूरा करने में रोकते नहीं हैं. शी वुड नेवर बिड द अर्थ not to hear her steps or to stars to hit their light. This force of will makes her bold, courageous, irresistible, passionless, cruel. कहते हैं यही स्ट्रेंथ ऑफ विल जो है उन्हें बोल्ड बनाती है और बिल्कुल कर्जियस बनाती है और एक इमोशनलेस, पैशनलेस, क्रूअल बनाती है. शी इन्वोक्स अ स्पिरिचुअल पावर्स. फिर वो क्या करती है, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स को इन्वोक करती है. So that is the famous quote. They tend on mortal thoughts, unsex me here and fill me from the crown to the toe, top full of direst cruelty. अब यहाँ पे वो क्या कहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनसेक्स मी हियर मीन्स के उनमें जो भी ट्रेट ऑफ वेमेंस हैं वो उनसे रिमूव कर दिए जाए. उनका जेंटल हार्ट और औरतों की तरह सोचना वो सब उनसे ले लिया जाए, उन्हें अनसेक्स कर दिया जाए. मीन्स के एक कुछ मैनली ट्रेट्स उनको जो है वो दिए जाए ताकि वो अपने मकसद को वो अच्छे से पूरा कर सके. और फुल ऑफ डाइस क्रूअल्टी, और उनमें जो है फुल ऑफ क्रूअल्टी आ जाए. शी इन्वोक्स द स्पिरिट्स टू मेक हर ब्लड thick and stop up all excess and passage to pity and remorse, so that no powers may shake my fell purpose nor keep pace between the effect and it. तो वो क्या कहती है, वो इन्वोक करती है स्पिरिट्स को कि उनका जो ब्लड है वो थिक हो जाए, स्टॉप अप ऑल एक्सेस एंड पैसेज टू पिटी, और तमाम जो पिटी और रिमोर्स जो पछतावे और जो एक मोरालिटी या इंसानियत है उनमें वो बिल्कुल रुक जाए, जम जाए, ताकि कोई भी जो पावर है वो उनके जो एम्बिशन है या जो मकसद है उसके बीच में नहीं आ सके. It is rightly to say that without her the murder of the king would have been impossible. So ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उनके बगैर जो किंग का मर्डर था वो बिल्कुल भी बहुत impossible था. So the next trait is tactful. Lady Macbeth is highly resourceful at the same time. She is tactful and doesn't lose her mental equilibrium even in the most critical situation. She advises her husband to look like the innocent flower and be the serpent under it. She is a woman of very practical wisdom. कहते वो इतनी टेक्टफुल थी, मीन्स के जैसे कि हम कहते हैं कि हम होते कुछ हैं लेकिन हम नज़र कुछ और आते हैं. ये भी एक इंसानों की कुछ क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर की जो इविलनेस है वो उसको अपनी इनोसेंस के पीछे इस तरीके से डिस्गाइज करते हैं कि कोई नहीं पहचान पाता कि वो अंदर से एक्चुअल में है क्या. तो वो क्या कहती हैं, वो अपने मेंटली इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इवन वो क्रिटिकल सिचुएशंस को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हैं. लाइक हम देखते हैं कि जब मैकबेथ आफ्टर मर्डर उनमें कुछ ऐसी हेलुसिनेशंस आती हैं, उनमें कुछ उनमें गिल्ट आता है, तो वो उन्हें ये मशवरा देती है कि आप ऐसे दिखाई दो जैसे कि आप इनोसेंट फ्लावर्स हो एंड बी द सर्पेंट अंडर इट, और फ्लावर्स के नीचे आप एक सांप की तरह हो. शी इज़ वुमेन ऑफ वेरी प्रैक्टिकल विजडम. वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड की एक औरत थी. टू बी गुल द टाइम लुक लाइक द टाइम व्हेन मैकबेथ ड्रेड्स हिज filthy hands, she says, a little water clear up of his deed, how easy is it then. कहते हैं जब मैकबेथ जो है जैसे कि हमें पता है कि पहले वो किंग डंकन को कत्ल करते हैं, उसके बाद वो रैपिडली कुछ मर्डर्स और करते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि उन्हें जो है हेलुसिनेशंस आने शुरू हो जाते हैं. उन्हें जो जिनको वो मर्डर करते हैं उनको वो इंसान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं.
तो उसके बाद क्या होता है कि वो कहीं पे भी कुछ भी बिहेव कर देते हैं। तो वो इस तरीके से वो जो लेडी मैकबेथ है उनको वहाँ पे संभालती हैं। और जब मैकबेथ को अपने हाथों पे वो खून देखते हैं, उन्हें अपने हाथ फिल्थी लगते हैं, डर्टी लगते हैं, तो वहाँ पे लेडी मैकबेथ उन्हें कंसोल करती हैं, अ लिटिल वाटर क्लियर अप ऑफ हिज डीड, कि कुछ थोड़ा सा पानी उनके जो डीड्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देगा। हाउ इज़ इट देन, कितना आसान था ये तब। साइकोलॉजिकल एम्बिग्यूटी ना, नेक्स्ट स्टेट इज़ इन इस करेक्टर साइकोलॉजिकल एम्बिग्यूटी। अब हम कहते हैं कि उनमें कुछ वो टैक्टफुल थी, वो कर्जियस थी, और क्या कहते हैं, शी वॉज अ लिटिल ईवल, but she was a psychological character also. Lady Macbeth's characters reflect psychological ambiguity, as she cannot be defined as purely evil or purely weak. At the beginning, she appears strong, ambitious, emotionally detached, but as the play progresses, her hidden guilt and inner conflict begin to surface. हम कहते हैं कि शुरू में तो वो हमें दिखाई देती हैं बहुत ज़्यादा ईवल और बहुत ज़्यादा बोल्ड जब प्ले शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि उनका एक जो हिडन गिल्ट है वो उन पे ओवर पावर आता है। वो एक उनका जो पछतावा जो है वो उनके सरफेस पे आना शुरू होता है, क्योंकि वो उनका वो अंदर से बाहर नहीं थी। She made herself like this just to her husband. So क्या कहते हैं अब यहाँ पे, this is the most clearly seen in her sleepwalking scene where she unconsciously reveals her guilt and imagines blood on her hands. अब ये जो sleepwalking scene है बहुत ज़्यादा फेमस सीन है, और जब कभी हमें ये क्वेश्चन आता है कि मैकबेथ एज अ साइकोलॉजिकल प्ले, तो हम कुछ इस टाइप के डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं टू प्रूव द प्ले साइकोलॉजिकल। तो उनका स्लीप वॉकिंग सीन आता है जहाँ पे वो अनकॉन्शियसली अपने गिल्ट को रिवील करती हैं, उन्हें अपने हाथों पे खून दिखाई देता है, वो अपने हाथों को वॉश करती हैं जब जो कि इसको क्लियर अप करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। दैट इज़ इन फैक्ट हर गिल्ट एंड जो कि उनको तंग करता है। दिस डुअलिटी इन हर पर्सनैलिटी मेक्स हर बोथ अ मैनिपुलेटर एंड अ विक्टिम ऑफ हर ओन कॉन्शियसनेस इन मैकबेथ। तो कहते हैं कि यही जो उनकी पर्सनैलिटी है जिसका जिनकी मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं मैकबेथ, लेकिन अंदर से वो क्या है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली सप्रेस है। Some critics even believe that her fainting at the time of discovery of King's murder was merely an fiction. She fainted in order to draw the attention of the lords and ladies from her husband to herself. तो एक जगह पे वो बेहोश हो जाती है जब उन्हें डिस्कवर करती हैं कि किंग का मर्डर हो गया है। वो उनकी जो ये जो है वो जस्ट प्रिटेंड कर रही होती है किसको बचाने के लिए, अपने किंग को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि आफ्टर हैविंग मर्डर द किंग मैकबेथ विल बिहेव वियर्डली। सो क्या कहती हैं वो, उनको बचाने के लिए वो सबके अटेंशंस जो है अपनी तरफ कर लेती हैं। शी वॉज अफ्रेड दैट हर हस्बैंड माइट डिवल्ज द गिल्ट out of his excessive fear, weakness, and pricking conscience. Her feminine nature, yet she is essential a woman possessing the essential feminine nature. She cannot wholly discard her feminine weakness in spite of her devilish will and unwavering determination. So हर आम लेडी की तरह जिस पे अपने हस्बैंड के लिए केयर होती है और अंदर से वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखती हैं, या एक जो अल्लाह ने एक औरत की नेचर बनाई है। कहते हैं कि वो जितनी भी उन्होंने डेविलिश एक्ट किए प्ले में, लेकिन क्या कहते हैं कि उनकी जो नेचर थी वो फिर भी उन पे ओवर पावर आई।
वो फुली तौर पे जो अपनी जो एक औरत की नेचर होती है या वीकनेस होती है, वो उनको अपने आप से ख़त्म नहीं कर पाई। हर फेमिनिन नेचर fully possesses her in the sleep walking scene, even scene or murder has gone deep into her mind and heart। कहते हैं कि जो मर्डर हुआ था वो इनके दिलो दिमाग पे इतना असर किया था। She recalled the event and shudders at its very thought. Yet who have thought the old man to have had so much blood in him? Not a human monster. Lady Macbeth is not quite inhuman. It is a mistake to call her the fourth witch. So अब यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, हम अपना जो है व्यू है वो देते हैं कि वो एक ह्यूमन मॉन्स्टर नहीं थी, वो बिल्कुल भी इनह्यूमन नहीं थी। सो ये बिल्कुल गलत कहना है कि वो प्ले की फोर्थ विच थी इन मैकबेथ। शी इज़ नॉट इन ह्यूमन बाय नेचर। एट वन प्लेस शी सेज इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल एट द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो जब वो अपने गिल्ट में होती हैं तो जब उन्हें अपने हाथों पे खून दिखाई देता है तो वो कहती हैं दुनिया का कोई भी परफ्यूम जो है वो जो मेरे हाथों से जो है इस स्मेल को जो है वो ख़त्म नहीं कर पा रही। द लेडी मैकबेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स इन द पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ शेक्सपियर। She deliberately tried to counteract all feeling of pity and remorse in a state of abnormal excitability. In spite of all her vicious deed, we pity her and mourn her untimely death. तो कहते हैं हम क्या कंक्लूड करते हैं इस पूरे एनालिसिस के बाद कि she was not purely was an evil lady. She was just a typical woman, a typical wife who wants her husband to be a king. That's it. But the irony is when he became king, she got died. तो वो जितनी मेहनत करती हैं अपने शौहर को किंग बनाने के लिए, लेकिन वो उनकी क्वीन बनना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं देख पाती और बहुत अनटाइमली उनकी डेथ हो जाती है जब मैकबेथ वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। सो शी वॉज अ ट्रैजिक कैरेक्टर, नॉट एन इवल कैरेक्टर इन माई ओपिनियन। तो डिफरेंट क्रिटिक्स की जो है इस बारे में डिफरेंट ओपिनियन है। आप भी अपनी सर्च करें, अपने ख़ुद की राय लिखें कि आप क्या समझते हैं आप प्ले को पढ़ने के बाद कि शी वॉज ईवल और शी वॉज इनोसेंट। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ टुडे। तो हम अपनी वीडियो में यहाँ पर एंड करते हैं। सो इफ़ एनी अदर टॉपिक यू वांट टू uncover, so please let me know in comment section. So thank you, Allah Hafiz.